Hello everyone, welcome to my channel Goal UPSC. Here in this video, I am going to talk about this article, that is creamy layer. So this article is dealing with concept of creamy layer, which is related to reservation. Like whenever you are providing reservation, then certain category of people who are considered creamy layer will be excluded from reservation. Right, so this is very basic meaning of what creamy layer is and why we are talking about this concept. So for now, this concept is applicable for OBCs, that is other backward class. These other backward class is a category who gets reservation, but in that there is a concept, as we said, that non-creamy and creamy. So there is a differentiation between creamy versus non-creamy. So the ones who comes under the category of creamy will not be given benefits, while these who are considered non-creamy will be given benefits. And this beneficiation will be given on the basis of certain grounds, certain criteria is there, and on that basis we can categorize them into these two categories. Right. Now you know that concept of reservation, from where this concept comes. If we talk about the constitutional basis of reservation, then you know that it is under Article 15 Clause 4. Okay, my pen is not working, sorry. And 16 Clause 4. So these are the articles which forms the constitutional basis for reservation. You must be aware about this, I think, by now. Then, so these articles provide kind of guarantee for equality to all citizens in any policy of the government and public employment. So here you have SC/ST के लिए reservation in educational institutions and public sector undertakings at central level. And then OBC reservation की अगर हम बात करते हैं, then it was introduced in 1990 on the basis of recommendations given by Mandal Commission. Mandal Commission, which gave recommendations in 1980, but it was implemented in 1990 by VP Singh government. ठीक है. And under this, 27% reservation for OBC was implemented. ठीक है. So you must know that when this reservation was provided in 1990, so definitely वहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यूज हुए होंगे, लोगों ने इसे चैलेंज भी किया ही होगा. जैसे कि 103rd जब अमेंडमेंट हुआ था, जिसके अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन दिया गया, तो उस टाइम पे भी इट वाज चैलेंज्ड, राइट. और उसी तरीके से इन 1990 में जब ये रिजर्वेशन आया फॉर OBCs, इट वाज आल्सो चैलेंज्ड. और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया अंडर इंदिरा Sohani case, and this judgment upheld 27% reservation for OBCs, but it was subjected to exclusion of creamy layer. That is, creamy layer will not be provided any reservation. Under this 1990 जो OBC को reservation दिया गया, 27% reservation. So who are generally considered creamy layer? Then जो क्राइटेरिया इनिशियली प्रोवाइड किया गया था, इट वॉज दैट एनी इंडिविजुअल ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स वॉज अ डायरेक्ट रिक्रूट टू ग्रुप A class 1 गवर्नमेंट जॉब, और इफ द पेरेंट वॉज प्रमोटेड टू ग्रुप A बिफोर द एज ऑफ 40 वॉज नॉट एलिजिबल फॉर OBC कोटा. तो इनको एलिजिबल नहीं किया जाएगा. एनी इंडिविजुअल जिसके बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स वर डायरेक्ट रिक्रूट्स टू ग्रुप B जॉब्स, तो जिसके दोनों पेरेंट्स ग्रुप B जॉब में हैं, दैट वुड बी पार्ट ऑफ क्रीमी लेयर एज वेल. देन चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस
officials only up to the rank of lieutenant colonel could avail of the quota. So up to lieutenant colonel जो है उनको तो मिलेगा, लेकिन उससे ऊपर वालों को नहीं मिलेगा. Then for those who are outside government sector, उन पे एक इनकम सीलिंग लगाई गई जो कि इनिशियली कुछ कम थी बट लेट एक्सटेंड करके 8 लाख कर दी गई, और ये 8 लाख ही है सिंस 2017. हाउएवर इनकम फ्रॉम सैलरी एंड एग्रीकल्चर इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, ये आपको पता होना चाहिए. दैन 2004 में क्योंकि काफ़ी वेगनेस थी तो फर्दर क्लैरिफिकेशंस प्रोवाइड किए गए अबाउट द क्राइटेरिया विच वाज नॉट कंसीडर्ड कॉम्प्रहेंसिव, स्पेशली द इनकम क्राइटेरिया. और उसमें ये कहा गया दैट इनकम ऑफ द पेरेंट्स फ्रॉम सैलरीज एंड फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है, ये सेपरेटली डिटरमाइन की जाती है. बट अगर ये एक्सीड करती है 2.5 lakhs per annum, which was creamy layer income ceiling for private persons at the time, for a period of 3 consecutive years के लिए अगर ये ऐसा रहता है तो they will be considered creamy layer. So ये क्लैरिफिकेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा. इसके रिगार्डिंग आप देखोगे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 15 to 23 के बीच में जो हुए उसमें काफ़ी कास्ट सर्टिफिकेट्स को जो कि OBC से रिलेटेड थे उनको रिजेक्ट किया गया बिकॉज ऑफ they were considered creamy layer. They were applying for OBC reservation but they were actually coming under the category of creamy layer, so they were rejected, their reservation was rejected, right? So एक और क्राइटेरिया आप यहाँ देखोगे, देखो हाई कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज गवर्नमेंट PSU एंड आर्म फोर्सेज ऑफिसर्स वर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट, जो कि क्रीमी लेयर कंसीडर किया गया, अलॉन्ग विद professional class and those engaged in trade and industry and property owners. An income or wealth test was also mentioned. तो इसमें एक wealth test भी mentioned है जो कि ज़रूरत पड़ने पर यूज़ किया जा सकता है, ठीक है. अब यहाँ पे कुछ और, तो यहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं कि किसको क्रीमी लेयर. ऑब्वियस सी बात है कि आप एक बहुत ही डिफ़िकल्ट है एक प्रॉपर क्राइटेरिया बना पाना, बट यहाँ पे जैसे कुछ इश्यूज़ ये बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स होते हैं उनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू आपके, जैसे ये देखो इन्होंने बताया है सैलरीज ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स फ्रॉम असिस्टेंट प्रोफेसर अपवर्ड टिपिकली स्टार्ट फ्रॉम लेवल 10 से, विच इज़ इक्विवेलेंट है टू एंट्री लेवल ग्रुप ए पोस्ट इन गवर्नमेंट, ऐसा ही कह रहे हैं. तो इट हैज़ बीन प्रपोज कि ये जो लोग हैं ना, जो यूनिवर्सिटी टीचर्स हैं, इनके बच्चों को भी कैटेगराइज करना चाहिए क्रीमी लेयर में, मतलब इन लोगों को भी क्रीमी लेयर में ही आना चाहिए और इनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए. फिर नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ यूनिवर्सिटीज़ को भी बोल रहे हैं उसी में कंसीडर करो. देन इट इज़ प्रपोज दैट ऑल एग्जीक्यूटिव लेवल पोजीशंस इन PSUs be treated as creamy layer. However, it has been proposed that executives जिनकी इनकम is within 8 lakh, which is ceiling for private persons, will not be categorized as creamy layer. So it is also proposed that employees of government aided institutions which usually follow the service conditions and pay scales of the central or respective state government be placed under the appropriate categories based on equivalence of their post. So these are all कि अभी चल रहा है which all should be included in this category and not, and these are some of the certain proposals which can be considered by the government. Then here they are just talking about that who are the likely beneficiaries if the proposed recommendations are accepted, if the proposals are implemented. Okay, so apart from that you need to also know, अच्छा बट ये चीज़ याद रखना है ना, ये जो है ना ये 2.5 लाख है, ये अभी 8 लाख ही है, ठीक है, डोंट गेट कन्फ्यूज, दिस इज़ 8 लाख ओनली. तो जो भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है उनकी इनकम अगर 8 लाख से ज़्यादा है तो उनको क्रीमी लेयर कंसीडर किया जाएगा. एंड दिस, ये जो इनकम थ्रेशोल्ड है ये ऐसा कहा गया है दैट दिस शुड बी लाइक इंक्रीज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years और सो. ये इनकम का जो अमाउंट है ये इंक्रीज़ होता रहना चाहिए. अब जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं देन वी मस्ट नो दैट देयर आर सर्टेन इश्यूज़ पर्टेनिंग टू रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया. उसमें से कुछ इश्यूज़ आपको खुद से पता होने चाहिए. 1-2 पॉइंटर्स हैं विच आई वुड लाइक टू एम्फसाइज ऑन. दैट इज़, वन इशू इज़ दैट रिजर्वेशन इज़ बीन प्रोवाइडेड टू ओनली
certain certain category of people are getting benefited because of reservation and not the actual ones who actually deserves that. So इसका कह सकते हैं कि there is concentration of reservation. ठीक है, concentration हो गया है in a particular, जैसे कि बस यही लोगों को मिल रहा है, मिलना है, हो सकता है कि it is like मिलना इनको चाहिए था, है ना, इनमें से कुछ और कुछ, बट मिल किनको रहा है, इनको. तो इसमें से कुछ ऐसे हैं जो शायद एक्सक्लूड हो जाने चाहिए थे बट वो एक्सक्लूड नहीं हो रहे हैं. और टू से दैट सब कुछ इनको मिल रहा है, इनको मिलना चाहिए था, दे वर लाइक डिज़ायर. ठीक है, लेकिन ये जो है इन्हीं को मिल रहा है, मिलना इनको भी चाहिए था, इनको नहीं मिल पा रहा है. सिर्फ ये जो a certain category of people only they are getting benefited, क्योंकि ये जो other people हैं maybe they are poor and they are actually even not taking part in educational level में, उनका कोई academic और उस direction में कोई काम ही नहीं है, तो they are not able to take the benefits or they are not even aware and not given that much opportunities that they can avail the benefits of reservation. Even there is like Rohini Commission, आपको पता होगा मेरे हिसाब से रोहिणी कमीशन है, उन्होंने इवन ये इस फैक्ट पे एम्फेसाइज़ किया है दैट 97% ऑफ रिजर्व जॉब्स जो हैं, रिजर्व्ड जॉब्स, 97% of reserved jobs and seats in educational institutions, they are just garnered by 25% of OBC caste or subcaste at central level. तो ये मैंने इसलिए लिखा है सो दैट यू कैन राइट दिस डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा. दिस कमीशन यू कैन इनकॉर्पोरेट इन योर आंसर्स. तो ये इनका खुद का डेटा है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको आंसर्स में लिखने के लिए कि देखो 97% रिजर्वेशन सिर्फ 25% के पास जा रहा है. कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ disparity? So this is one of the like issues pertaining to reservation. Then the other issue is कि SC/ST में there is no creamy layer का concept, though there are for and against है कि भाई OBCs का there is other criteria of reservation and all, but SC/STs का माना जाता है कि it is historically वो disadvantaged रहे हैं. You cannot put on that kind of creamy layer concept to SC/STs and all, but it is considered. It is also like considered a downfall kind of thing. Then there are unfilled vacancies as well. This is considered an issue as well. Like 40 to 50% seats of जो कि reserved हैं OBC SC/ST के लिए, they remain unfilled as per government applies, जो भी हमें मिला है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के थ्रू. तो इवन इन पार्लियामेंट मतलब जब भी पूछा गया है ना, तो आप देखोगे 40 से 50% सीट्स दे आर नॉट फिल्ड अप. तो आप देखो कि रिजर्वेशन दे भी रहे हैं बट सीट्स भी फिल्ड अप नहीं हो रही हैं. तो व्हाट इज़ हैपनिंग, लाइक जो डिज़ायर्ड लोग हैं जिनको ज़रूरत है उनको जा भी नहीं रहा है. तो व्हाट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड, लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग, पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. एंड अदर थिंग इज़ दैट रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर इज़ ऑल्सो गेनिंग पॉपुलैरिटी. तो मतलब रिजर्व ये कहते हैं ना कि वो एक आपने इनिशियली रिजर्वेशन दिया तो अब वो डिमांड बढ़ती ही जाएगी. आपने एक बार दे दिया तो वो बढ़ेगी, तो वो बढ़ती ही जा रही है. मतलब जो लोगों को शायद ज़रूरत भी नहीं है, दे आर ऑल्सो डिमांडिंग रिजर्वेशन. तो वो चीज़ होती है, बट गवर्नमेंट हैज़ टू बैलेंस आउट दीज ऑल थिंग्स. इट इज़ देयर वर्क, राइट. सो इन वे फॉरवर्ड kind of thing you can always suggest that सब कैटेगराइजेशन जो कि रोहिणी कमीशन, यस नाउ वे फॉरवर्ड में आप ये डालोगे रोहिणी कमीशन जो कि बिठाई ही गई थी इसलिए कि वो रिकमेंडेशंस दे ऑन सब कैटेगराइजेशन अमंग OBC कास्ट. तो दिस आप डाल सकते हो कि ये सब कैटेगराइजेशन शुड बी देयर टू एड्रेस द अंडर रिप्रेजेंटेशन और नॉन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कम्युनिटीज़. दैन क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन जो है वो SC/ST कैटेगरी में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, एटलीस्ट फॉर चिल्ड्रन ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप A काइंड ऑफ क्लास A गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, तो उनके लिए. So this is it for this article. Thank you so much. I hope it
help you and जो भी कमीशन डेटा जजमेंट आई हैव मेंशन इन दिस आर्टिकल वैसे आपको पता ही होंगे, इट इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ रिवीजन। ये हमेशा जो करंट है ना ये आपको स्टैटिक से लिंक करके पढ़ना है, सो दैट आपका बस रिवीजन ही होगा, इससे नथिंग एल्स, स्पेशली इन दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स लाइक पॉलिटी, geography. These kind of topics are just to revise. So I have provided you, I think, a good level of content and you need to just go through it. अभी यहाँ आया है तो डेफिनेटली मैगजीन में आएगा, तो जब मैगजीन में आएगा तो यू मस्ट बी एबल टू रिकॉल दिस पॉइंट्स जो मैंने मेंशन किए हैं, ठीक है। बस ये हाईलाइटेड जो कमीशन इशू जो भी है, डेटा एंड ऑल, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। Thank you so much for this and you can join my channel, subscribe to it if you want more such videos. Thank you so much.